हेलो क्लास, माय नेम इज़ डॉक्टर आंचल लोधी। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 1 समझाने वाली हूँ जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड द क्रॉप मीन्स when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale. Examples is wheat crop means that all plants grown in a field are that of wheat. Crops are different types and they are classified on the basis of season in which they grow. In India, climate conditions are vary from one region to another. There is rich variety of crop grown in different part of country. According to that, crops are differentiated into two types, which is Kharif crop and the Rabi crop. Kharif crop. This crop shown in rainy season. Rainy season in India is June to September. Examples are paddy, soybean, cotton, maize, jowar, etc. Second is Rabi crop. This crop shown in winter season. Winter season is from October to March. Examples are wheat, gram, peas, mustard. For the cultivation of crop, several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. First step is preparation of soil. This is first step before growing a crop. In this, soil is loosened and tilted before the seed are sown. This allows the root can deeply penetrate into the soil. Loosened soil help in the growth of earthworm and microbes. And we know earthworm is a farmer friendly which is help in the crop production. The process of loosening and turning of soil is called tilting and plugging. For this process, we have some tools are plow, hoe and the plow. This is used since ancient time. Plow made up of wood and is drawn up by pair of bull, horse and camel. As I know, we know गांव में हमारे पास क्या होती थी? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, जिनके हेल्प से हम गांव में खेतों की बुड़ाई करते थे. The main part of plow is long log of wood called plow shaft. This helps in tilting the soil, removing the weed, adding fertilizers and soil turning. This is hoe. This is a simple tool, works like plow. It loosens and removing the weed from soil. This is made up of long rod of wood and iron. ये जनरली वुड या आयरन की बनी रहती है और ये एक काम प्लथ जैसे ही करती है और ये इजीली लूजन करती है. ये तो होती है हमारी पुराने टाइम की चीज़ें, प्लो एंड होए. बट आजकल हमारे पास लेबर को कम करने के लिए, मैन पावर को बचाने के लिए कल्टीवेटर यूज़ करते हैं जो इजीली सॉइल को लूजन कर देता है. This is a mechanical process and it saves labor and time. It helps in farmers' hard work. The second is sowing process. Sowing is a method to place a seed in suitable soil for high crop production. For this, farmers choose very proper seeds for the crop production, which is a good quality of seed, a healthy seed and a seed gives high yield. ये सब आप कैसे चेक कर सकते हैं? घर में भी एक ग्लास पानी का लीजिए जिसमें गेहूं के कुछ दाने लीजिए. उन दानों को आप पानी में डालें और अच्छे से चम्मच से घुमा दें. चम्मच से घुमाने के बाद क्या होगा? जो हेल्दी सीड्स थे वो बॉटम में आके इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन जो अनहेल्दी सीड्स थे, जो वीक सीड्स थे, वो सरफेस पे फ्लोट करेंगे. इसी अकॉर्डिंग फार्मर्स भी अपने सीड्स को चूज़ करते हैं और जो सीड्स हेल्दी होते हैं फार्मर्स उन्हीं को यूज़ करके अपने क्रॉप में लेते हैं. टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग, ट्रेडिशनल टूल और सीड टूल्स. सोइंग करने के लिए भी क्या होता है? दो टाइप से टूल यूज़ होते हैं. ट्रेडिशनल टूल्स में क्या होता है? पहले क्या होता था, जैसे प्लॉ होता है, प्लॉ में ही बैलगाड़ी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है?
बैलगाड़ी आगे लगी रहती है और इसमें क्या होता है, पीछे एक फनल टाइप लगी होती है, फनल और एक रॉड लगी होती है, जिसमें फनल में क्या करते हैं, फार्मर्स 1 बाय 1 सीड डालते रहते हैं और दूसरी तरफ से गुड़ाई होती रहती है और सीड 1 बाय 1 प्लेस होता रहता है एक एक जगह पर। तो पाइप्स हैविंग अ शार्प एंड टू पियर्स इनटू द सॉइल एंड द सीड वहाँ प्लेस हो जाता है, उस जगह पे आपका आराम से सीड प्लेस हो जाएगा। बट इन सीड ड्रिल इज अ मशीनरी टूल एंड वी यूज़ हेयर अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि ये एक यूनिफॉर्म, ये एक मशीन के तरह बना है। तो इसमें क्या होता है, एक डिस्टेंस पे, एक ये डेप्थ पर सीड हमारे यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, सीड होते हैं और इजीली एक ही डेप्थ पर वो ग्रो होते हैं। सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्ड्स। और अपने यहाँ पे ये मशीन से, इस मशीन से क्या होता है कि सॉइल अपने यहाँ पे सीड के ऊपर कवर हो जाती है ताकि वो किसी भी बर्ड को से बचा सके एक सीड को। इससे क्या होता है कि हमारा लेबर टाइम भी बचता है और ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट मीन्स अगर हम ट्रेडिशनल टूल की बात देखें तो गाय बैल हमारा जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही हमारा क्या हो रहे हैं, सीड रखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सीड ड्रिल कर रहे हैं तो एक हमारी यूनिफॉर्मली डिस्टेंस बनी हुई है, एक यूनिफॉर्मली डेप्थ बनी है, तो उसी अकॉर्डिंग सीड ड्रिल हो रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट ग्रो होगा। तो दीज आर द टू डिफरेंसेस टूल्स यूज फॉर सोइंग। द थर्ड इज adding manure and fertilizers. Nutrients added to the soil for healthy growth are known as manure and fertilizers. What is the manure? Manure is an organic substance obtained from decomposition of animal plant waste by microorganisms. Farmers produce manure biologically by they are using animal waste and plant waste and put them into a pit and cover it all. After some time, there is a microorganism growth considered and they are decompose these all waste into the manure. Manure replenish the soil with nutrient. Fertilizers. Fertilizers are man-made produced in factory rich in particular nutrient, urea, ammonia sulfate, sulfur phosphate, potash and NPK. NPK determined as nitrogen, phosphorus and potassium. Excessive use of fertilizers has made soil less fertile and created water pollution. To maintain the fertility of soil, we are adding fertilizers with a biological organic obtained manure to replenish the soil fertility and for the good cultivation of crop. Crop rotation. What is the crop rotation? Grow different crop alternately to replenish the soil with nutrient. In this, farmers has grown different type of crops in present of nutrient. Adding manure and fertilizers. Difference between fertilizers and manure. As I already talked to you, they are chemically synthesized and manures are naturally produced. Fertilizers are prepared in factories, but the manure produced in field. Fertilizers, they do not provide any humus to soil, but manures provide humus to the soil. Fertilizers, they are highly rich in nutrient, but manures are less in nutrient. देखिए, कुछ के एडवांटेजेस भी हैं, कुछ के डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसलिए हम किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम मैन्योर भी ऐड करते हैं और फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं ताकि हमें एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन मिले। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. Manure is considered better than fertilizers. It enhances the water holding capacity of soil. It makes soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes
which is earthworm. It improves the texture of. Fourth is irrigation. What is the irrigation? Irrigation means होता है आप घर में भी अपने क्या करते हैं, जब कोई पेड़ लगता है तो आप रेगुलर उसमें क्या करते हैं, पानी देते हैं ताकि वो ग्रो करे, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। तो वाटर इज अब्सॉर्ब बाय रूट। अब वाटर क्या करता है, वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, रूट में एब्जॉर्ब होता है। तो इसी को हम कहते हैं इरिगेशन। हमें किसी पेड़ में को पानी देने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्यों यूज़ होता है? यूज़ ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली, और वो हर एक पार्ट के प्लांट पे पहुंचते हैं। हर प्लांट मतलब रूट से जाएगा स्टेम, स्टेम से फ्लावर, लीव्स, ताकि वो इजीली ग्रो करें। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। हमें क्या करना होता है, एज यू नो, आप अपने घर में भी क्या करते हैं, एक अगर आप पेड़ लगाते हैं तो उसमें क्या आप बार बार पानी देते हैं? नहीं, अगर आप एक रेगुलर इंटरवल में देते हैं। अगर आज आपने मॉर्निंग में दिया तो आप शाम को देंगे, शाम को दिया है तो आप सुबह देंगे। सेम थिंग हमें भी जब हम क्रॉप लगाते हैं तो हम बार बार उसको पानी नहीं देते हैं, हम एक रेगुलर इंटरवल में ही उसको पानी देते हैं। इंटरवल में वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, सॉइल टू सॉइल एंड क्रॉप टू क्रॉप। इंटरवल हमें किस क्रॉप को कितनी देर के में पानी देना है, किस क्रॉप को किस सीज़न में ज़्यादा पानी देना है और किस सीज़न में कम पानी देना है, कौन सी सॉइल ज़्यादा थिक है, कैसी है, इसको हम इरिगेशन में देखते हैं। सीज़न टू सीज़न, सपोज विंटर सीज़न में प्लांट्स कम एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, तो हम उनको कम पानी देते हैं। क्रॉप टू क्रॉप, काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिलता तो वो आराम से ग्रो करते हैं, लेकिन किसी क्रॉप को अगर पानी एक दिन भी नहीं मिलता है तो वो सूख जाते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल। घर में तो हमारे पास जो पानी हम अपने पेड़ों को डालते हैं वो नॉर्मल एक टैप वाटर से लेते हैं, लेकिन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन हमें एक लार्ज स्केल में वाटर चाहिए होता है, जो हम यूज़ करते हैं वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनली वाटर्स जो यूज़ होते थे कुएं से, लेक से, झील से, कैनाल लिफ्टेड अप, वहाँ से लिफ्टेड किए जाते थे, मैनुअली लिफ्टेड किए जाते थे। कैटल एंड ह्यूमन लेबर आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये चीपर तो थी क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने थे किसी भी चीज़ के, बट कम यूज़ करती थी। इससे इस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि हमारा पानी का वेस्टेज बहुत होता था, हमारी मैन पावर बहुत लगती थी। आप देख ही सकते हैं इसके वेज हैं मोट, चेन पम्प, डेकली एंड राहत। अब आप इन चार कैरेक्टर्स में देख ही सकते हैं मैन पावर या एनिमल पावर कितनी यूज़ हो रही है, और सोर्स भी कैसे हैं। अगर सपोज किसी भी वुड है, वुड अगर टूट जाएगी तो आप पानी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, वो पानी प्रॉपर इरिगेशन में नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल मेथड जो था वो पहले यूज़ किया जाता था पर लेस एफिशिएंट था, चीपर तो था बट लेस एफिशिएंट था। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में जो आजकल यूज़ किया जाता है। ये है एक स्प्रिंकल मेथड। इसमें क्या होता है, हैविंग परपेंडिकुलर पाइप्स, एज यू कैन सी हेयर, एक वेल है जिसमें एक परपेंडिकुलर पाइप लगा हुआ है और रोटेटिंग नोज़ल लगी है ऑन द टॉप। जो ये टॉप में नोज़ल है वो क्या करती है, पानी को एज अ बारिश की तरह स्प्रिंकल करती है और वो पूरे पेड़ों में, क्रॉप के हर एरिया में वो पहुंचता है। हर एक डिस्टेंस में वो लगा होता है, इंटरवल में लगा होता है, और रेगुलर इंटरवल में उसमें क्या होता है, एक साथ पानी बाहर आता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये होती है हमारी स्प्रिंकलर सिस्टम। ये एज अ रेन की तरह बिहेव करती है सब जगह जैसे बारिश हो रही है। सेकेंड आया ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर फॉल्स
ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट। इसमें क्या होता है, एक रूट के पास नोजल लगी होती है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट को वाटर प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता। एज द स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि वाटर एज अ रेन की तरह स्प्रेड हो रहा है। वो वाटर अनवांटेड एरिया में भी जा रहा है जहाँ पे प्लांट को नीड नहीं है वाटर की। प्लांट को नीड है जनरली रूट्स में, बट स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लीव्स वगैरह सब में जा रहा है जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ड्रिप सिस्टम इज़ वेरी convenient as comparison to sprinkle method. This is a boon in region where available of water is poor. As I told you कि इसमें क्या होता है कि वाटर की वेस्टेज कम होती है। जहाँ जहाँ पे प्लांट की रूट होती है सिर्फ पानी वहाँ ड्रॉप वाइज ड्रॉप जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है जहाँ पे इंडिया में बहुत सारे पानी की दिक्कतें हैं। तो ये वहाँ पे एज अ अवतार प्रेजेंट होता है ड्रिप सिस्टम कि वहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है और पेड़ों को उगने के लिए भी, प्लांट को कल्टीवेट होने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है और पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में। ये हमारा नेक्स्ट है क्या। इसमें क्या होता है, वीड्स क्या होता है, वीड्स होते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट जिनके नाम हमने सीड लगाए होते हैं, ना हम उनको चाहते हैं कि वो हमारी क्रॉप के बीच में आए, वो होते हैं वीड। अब वीड को रिमूवल करने की प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। वीड को हमें रिमूव क्यों करना है, वीड क्या करते हैं, वीड क्रॉप के ही न्यूट्रिएंट को लेके, पानी को लेके, स्पेस को लेके, लाइट को लेके compete करते हैं और खुद तो वो खूब खा लेते हैं लेकिन क्रॉप को वो नहीं देते हैं। इससे क्या होता है, वीड तो बहुत ग्रो हो जाती है लेकिन क्रॉप क्या होती है, छोटी ही रहती है। जबकि हमें क्या चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन हाई चाहिए और वीड नहीं चाहिए। आप अपने घर के पेड़ों में भी देखते हैं, गमलों में क्या होता है कि साथ में घास उग जाती है। कहीं आपने फ्लावर लगाया, फ्लावर का पौधा लगाया और उसके साथ क्या आ जाती हैं, घासें आ जाती हैं। वो क्या है, वो एज अ वीड परफॉर्म करती है वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, उन घासों को हटा देते हैं ताकि वो जो न्यूट्रिएंट है सिर्फ उस फ्लावर के प्लांट को मिले। अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। समटाइम्स वीड्स आर पॉइजनस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। काफ़ी टाइम क्या होता है, कुछ वीड्स तो अनपॉइजनस होती है लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, क्रॉप्स के साथ साथ वीड भी कट के आ जाती है और वो जब ह्यूमन खाता है या एनिमल कंजप्शन करता है तो वो उनके लिए हार्मफुल होती है। मैनुअली वीड रिमूव बाय खुरपी। एज यू सीन बाय खुरपी से क्या किया जाता था, उन वीड को मैनुअली रिमूव किया जाता था। बट टुडे वीड आर कंट्रोल्ड बाय वीडिसाइड विच इज़ 2:4D। वीडिसाइड क्या होता है, वीडिसाइड क्रॉप वीड्स को क्या करता है, रिमूव करता है। ये स्प्रे कब दिया जाता है, ये स्प्रे जब दिया जाता है बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। आप जब फ्लावर प्रोड्यूस हुआ होता है, होने से पहले और सीड फॉर्मेशन से पहले हम इस वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं ताकि वो ग्रो ना कर सके और हमारे क्रॉप को भी कोई हार्मफुल ना हो। क्योंकि वीडिसाइड एक केमिकल है, अगर हम उसको फ्लावर के प्रोडक्शन के बाद और सीड फॉर्मेशन के बाद उसको स्प्रे करेंगे तो वीडिसाइड केमिकल हमारे क्रॉप को भी हार्म कर सकता है। जब हम उसको कंजप्शन करेंगे तो हम तक इजीली पहुंच जाएगा, लेकिन हमें उसको कब स्प्रे करना है, फ्लावरिंग से पहले और सीड फॉर्मेशन से पहले। नेक्स्ट आ गया हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब कोई क्रॉप प्रॉपर मैच्योर हो जाती है, इजीली फ्रूट्स अपना क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर कर देती है तो हम उसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हार्वेस्टिंग डन बाय मैनुअली बाय सिकल्स और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। सिकल खुरपी से इजीली करते हैं गांव में काफ़ी जगह, लेकिन काफ़ी जगह हार्वेस्टर भी यूज़ करते हैं फॉर द लार्ज स्केल। ग्रेन सीड सेपरेटेड फ्रॉम द काफ कॉल्ड थ्रेशिंग। अब क्या होता है, जैसे गेहूँ है,
गेहूं के ऊपर एक लेयर होती है, और गेहूं एक बीज है, सीड है, ग्रेन सीड है। ग्रेन सीड को उसके जो बाहर के आउटर लेयर से अलग करना, काफ से अलग करने को कहते हैं थ्रेशिंग। एंड विनोइंग क्या होता है? विनोइंग एक छोटे स्केल पर, जैसे एज यू कैन सी दिस, छोटे स्केल पे हम ग्रेन सीड को सेपरेट करते हैं काफ से, वो कहते हैं विनोइंग प्रोसेस। In India, there is many type of harvesting festival we celebrated are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, and Bihu. Storage, protection from moisture, insects, rats, and microorganism. अब जब हमने इतना लार्ज स्केल में कल्टीवेशन किया है, तो अब उसको स्टोरेज करना भी ज़रूरी है ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए खा सकें। अब आप अपने घर में भी देखते हैं कि हम कोई भी गेहूं आता है, चावल आता है, उसको हम एक प्रॉपर कंटेनर में स्टोर करते हैं ताकि हम उसको काफ़ी मंथ तक के लिए खा सकें। तो ऐसे ही फार्मर्स भी करते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो कल्टीवेट होता है क्रॉप, उसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं, पहले उसको सन में ड्राई करते हैं ताकि उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लग जाएगी और वो क्रॉप ख़राब हो जाएगी। इससे सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उसको धूप में आराम से सूखने दें। फिर फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बिन। आपने देखा ही है, गेहूं की क्या होती हैं, बोरियां होती हैं, वो क्या होती है, जूट की बनी होती हैं। और मेटेलिक बिन होते हैं इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल स्टोरेज होती है साइलोज एंड ग्रैंडरीज। ड्राइड नीम लीव्स यूज एट होम। हम अपने घरों में क्या करते हैं, इन सब को मॉइस्चर, इंसेक्ट से बचाने के लिए ड्राइड नीम भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया फूड एंड एनिमल्स। एज लाइक प्लांट, एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस फूड। हमें पता ही है कि प्लांट तो हमें खाना देते ही हैं, फल, सब्जी, दाल सब देते हैं, लेकिन एनिमल भी हमें खाना देते हैं। जैसे कि पीपल इन कोस्टल एरिया, वहाँ क्या है, वहाँ पे खेती पे नहीं हो पाती है, लेकिन कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे क्या होती हैं, फिशेस बहुत मिलते हैं, तो वहाँ के लोग क्या कंज्यूम करते हैं, फिश कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स रेयर एट होम और इन फार्म प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, फार्म में रहते हैं, जहाँ हम उनको खाना देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं। और यही अगर हम इसको लार्ज स्केल में करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फूड प्रोवाइड बाय एनिमल्स आर मिल्क, चिकन, एग, फिश, मीट एट्सेट्रा। तो बच्चों, आज आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल पता करनी है या नोट्स चाहिए किसी भी तरीके के, तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID मेंशन कर रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।